नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज मैं रडार पर एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, आज सुबह से हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद साइंट के नंबर्स आए, नंबर्स कमजोर हैं और स्टॉक पिटता हुआ। उसकी बातचीत, जेएसडब्ल्यू स्टील के सज्जन जिंदल के साथ बातचीत। लेकिन सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हुए, क्विकली एक बार वहां चलते हैं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। I wish you all a productive, fruitful, and enjoyable summit. In Gujarat, this is the season of the kite festival or Uttarayan. Amid the busy schedule of the summit, I hope you shall be able to take some time out to enjoy the sights and sounds of the festivities and the state. I particularly welcome and thank the 15 partner countries of this edition of Vibrant Gujarat. I also thank the 11 partner organizations and all those countries, organizations and institutions who are holding their seminars at this forum. It is also a matter of satisfaction that 8 Indian states have come forward to make use of this forum to highlight their respective investment opportunities. I hope you all shall find time to visit the Global Trade Show, which is remarkable in a scale and range of world-class products, processes, and technologies. In fact, Gujarat represents the best of business spirit which exists in India. This event is further sharpened the edge which Gujarat had seen several decades. The Vibrant Gujarat Summit has had a transformation journey of 8 successful editions. A number of conventions and seminars have been organized on various topics. These issues are of importance to Indian society and economy, as well as the entire global community. By way of example, let me mention the celebration of Africa Day tomorrow and the global conclave of International Chambers on 20th January. Friends, assembled here today is truly august gathering. We are honored by the presence of many heads of state and government and several other distinguished delegates. This shows that international bilateral cooperation is no longer limited to national capitals, but now extend to our state capitals as well. In India, as in most emerging economies, our challenge is to grow horizontally as well as vertically. Horizontally, we have to spread the benefits of development to regions and communities that have lagged behind. Vertically, we have to meet and enhance expectations in terms of quality of life, quality of services, and quality of infrastructure. We are well aware that our achievements here in India will directly impact 1/6 of humanity. Friends, those who visit India regularly would have felt a change in the air. The change is both in terms of direction and
intensity. Over the last 4 years, the focus of my government has been to reduce government and enhance governance. The mantra of my government has been reform. वाइब्रेंट गुजरात समिट आज से 18 तारीख से शुरुआत और 20 तक ये समिट कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तगड़े करार, तगड़े एमओयूज होने की उम्मीद। तो इंटरनेशनल डायस्पोरा को मोदी जी एड्रेस करते हुए आपकी स्क्रीन पर। लेकिन भारतीय बाजारों में हल्की नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। आखिरी दिन है हफ्ते का, इस बिजनेस वीक का, और थोड़ी सुस्ती, और दो रीजंस हैं बड़े। एक तो दो स्टॉक्स हैं दरअसल। रीजन क्या? सन फार्मास्यूटिकल कल 6%, आज 10% वो निफ्टी का स्टॉक गिरता हुआ। और दूसरा, आज एकदम दिन के दौरान भारतीय एयरटेल में अच्छा खासा प्रेशर, टेलीकॉम एज अ स्पेस पे प्रेशर, क्योंकि जियो शायद अभी जल्द दरें घटाने की शुरुआत ना करे। प्राइसिंग कंपटीशन वो बना रहेगा, ये मूड बिगाड़ने वाले काम थे। ये वो स्टॉक जो खास तौर पे दबाव बना रहे। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के हाईस पे 3% का उछाल। सुबह से हम लोग कह रहे हैं आपको, कल से, कि बेहतरीन नंबर्स हैं इस कंपनी के। रिजल्ट से पहले बिल्डअप हुआ और उसके बावजूद देखिए, बिल्डअप के बावजूद आज भी किस तरह की तेजी आप इस स्टॉक पे आती हुई देख रहे हैं। गजब का मूव। शुरू का जो हल्का सा डिप भी आया था, डिप भी लाल निशान में नहीं, हरे निशान में था, और वहां से देखिए क्या रिकवरी स्टॉक में। लेकिन चलिए, मैनेजमेंट रडार पे हैं दो, तो मैं पहले बातचीत की शुरुआत कर देता हूं। एक एक करके दोनों मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, सायंट के प्रेसिडेंट और सीएफओ अजय अग्रवाल साहब जुड़ते हुए, तो अजय अग्रवाल साहब से बातचीत करेंगे। अजय जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका, और आप सबकी स्क्रीन पर सायंट, इस कंपनी के जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे वो आएंगे। अजय जी, नंबर्स देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मोटा मोटी सब स्ट्रीट में उम्मीद कर रहे थे कि आप इस बार सीजनली वीक क्वार्टर होगा, लेकिन 1-1.5% के आसपास कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ डिलीवर करेंगे। उल्टा ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ आ गई, 1% ग्रोथ गिरती हुई नजर आई। क्या गड़बड़ा गया मामला सर इस क्वार्टर में? आशीष जी, एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको और आपके सब दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी और साइंट की पूरी टीम को हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष। जहां तक हमारे नतीजों का सवाल है, यदि आप देखें, आपकी बात सही है कि जो Q3 है वो हमारे लिए हमेशा एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। और जो आपने बात कही कि आप डी ग्रोथ की जगह थोड़ा 1% का ग्रोथ देख रहे थे, आपकी बात सही है। कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो पुश आउट हुए हैं Q4 में। मैं आपको और आपके दर्शकों को एश्योरेंस देना चाहता हूं कि यदि आप Q3 और Q4 को मिला के यदि H2 को देखें, तो हमारा जो गाइडेंस है, जो हमारा प्लान है, वो एकदम ट्रैक पर है। और इसको यदि आप देखना चाहें तो आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स को देखें। हमारा जो रेवेन्यू है वो रुपी टर्म्स में 20% आगे है। जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर, वो भी 20% से ज्यादा आगे है। यदि आप उसमें से डॉलर टर्म्स में भी देखें तो हमारा डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, और करेंसी का बेनिफिट निकालने के बावजूद डबल डिजिट ग्रोथ है हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो सायंट का रन रेट तो सर अजय जी हमेशा स्ट्रांग रहा है। अच्छा, तो इस बार जो पेन आया है दैट इज बियॉन्ड सीजनैलिटी, कुछ इश्यूज हैं। आपने कहा पुश आउट हुआ, तो आसान शब्दों में हमें समझाएं कि क्लाइंट्स की तरफ से डिलेज हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में समय लग रहा है, वो प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रीम नहीं आ पाए, ये मतलब हुआ क्या? नहीं, इसका मतलब एक जनरलाइज नहीं है। जैसे हमारा कम्युनिकेशन बिजनेस है, उसमें हम लोग कुछ काम Q3 में कंप्लीट करना चाहते थे, वो काम हमें Q4 में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे जो उसका स्पेसिफिक ऑर्डर था वो Q4 को पुश आउट हो गया। तो एक स्पेसिफिक कुछ केसेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है -1 और 1% में। यदि $2 से $3 मिलियन का जो वर्क है, और कुछ था ऐसा पुश आउट हुआ हमारे सेमीकंडक्टर बिजनेस में। मेनली ये दो कारण रहे। हाँ, तो थोड़े से मतलब काम काज थोड़ा डिले देखने को मिला, तो इस क्वार्टर में बुक नहीं कर पाए, तो एक्सपेक्ट करूं सब्सिक्वेंट क्वार्टर Q4 में बुक कर पाएंगे, वहां पे हालात वापस नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएंगे? 100% आप देखेंगे कि Q4 एक बहुत ही रोबस्ट क्वार्टर रहेगा। और हमारे सभी वर्टिकल्स में आपको बहुत अच्छा इंक्रीज दिखेगा Q4 में। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो हम लोग आशा कर रहे हैं कि हमारा डबल डिजिट ग्रोथ होगा ग्रुप का कांस्टेंट करेंसी में या डॉलर में, और करीब 20% से ज्यादा रुपी टर्म्स में हमारा ग्रोथ होगा। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो Q3 का पेन कुछ हद तक उसकी भरपाई Q4 में होगी, लेकिन पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं
अजय जी, क्योंकि आपने जो पूरे साल की सर्विसेज की गाइडेंस दी थी वो लोअर कर दी है। पहले डबल डिजिट की आप बात करते थे, अब आप 8.5 से 9.5% कह रहे हैं, तो भरपाई होगी, लेकिन जो एंटिसिपेटेड था उतनी भरपाई Q4 में एक्सपेक्ट नहीं करूं। आकलन सही है? मगर उतना ही यदि आप देखें हमारे जो बाकी बिजनेस हैं, हम लोगों ने एक डिफेंस में हमने एक्स्ट्रा कुछ काम किया है, वो Q4 में आएगा। इसके अलावा हमारा जो बाकी भी कुछ अपसाइड है जो Q4 में है, तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल ट्रैक पर है। यदि डीएलएम में देखें हमने 20% का गाइडेंस दिया था। मेरा सवाल ये जो आपने FY19 में अपनी सर्विसेज ग्रोथ की गाइडेंस रिड्यूस करके 8.5 से 9.5% कर दी, पहले डबल डिजिट से, ये क्योंकि साल के एंड में जाते जाते आप कर रहे हैं, तो कि FY20 का भी रन रेट ऐसे एक्सपेक्ट करूं सर्विसेज का 8.5 से 9% के आसपास, या ऐसे एक्सट्रापोलेट करना गलत होगा? देखिए, हमारे जो सबसे बड़े 3 बिजनेस यूनिट है, एरोस्पेस को यदि आप देखें, लगातार 2 सालों से फाइनेंशियल ईयर 18 हमारा थोड़ा फ्लैट रहा, 19 में हम लोगों ने एक अच्छा ग्रोथ लिया है। यदि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग मिला के देखें तो 20% से ज़्यादा का ग्रोथ है। यदि आप खाली सर्विसेज को देखें तो करीब 6% का ग्रोथ है। वो एक बहुत अच्छे अपहिल पे है, तो एरोस्पेस में हमारा ग्रोथ बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशन में इस साल में कुछ ग्रोथ कम हुआ, वो भी अगेन डबल डिजिट में रिकवर होगा। यूएनजी एक अकेला वर्टिकल है जिसमें हमारे यहाँ डी ग्रोथ हो रही है इस साल में, वो भी अगले साल में पॉजिटिव ग्रोथ। इसका आसान शब्दों में हम रिटेल समझे क्या मतलब सर? आप ये कहना चाहते हो कि FY20 में वापस डबल डिजिट ग्रोथ सर्विसेज से एक्सपेक्ट करूं? जरूर। आई थिंक हमारा अगला साल इस साल से बेहतर होगा, सर्विसेज के लिए भी और ओवरऑल ग्रुप के लिए। अच्छा, आपने इंडिकेट करा कि कुछ प्रोजेक्ट्स पुश आउट होते हुए नजर आए सब्सिक्वेंट नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ। ऐसे ही कमेंट्री में मुझे बताया जा रहा है कि एक्सेंचर की तरफ से भी आई थी। तो क्या ये कुछ मैक्रो कंसर्न बन रहा है, उभर रहा है सर, कि क्लाइंट्स अपने आईटी स्पेंड्स रीथिंक कर रहे हैं इस समय? नहीं, जहां तक हमारा सवाल है, देखिए, एक तो बात यह है कि हम लोग इंजीनियरिंग और R&D में हैं, तो हमारा और आईटी का हमेशा एकदम कंपेरेबल नहीं है। इंजीनियरिंग और R&D में आज आउटलुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बाजार है। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा कुछ स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक एक इशू रहा, जहां पे कस्टमर में डिसीजन मेकिंग में डिले हुआ, लेकिन मैं कहूंगा वो कस्टमर स्पेसिफिक और एक वर्टिकल स्पेसिफिक इशू है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक बात। तो और इंजीनियरिंग और R&D में बहुत अच्छी मजबूती है डिमांड साइड पे। तो मैं ग्रोथ पे अब तक फोकस कर रहा था। ग्रोथ को लेकर मुझे समझ पड़ता है कि Q3 एबरेशन मान लूं, कुछ पुश आउट हुआ था। Q4 में हालात सुधरेंगे इस कंपनी के, और FY20 में वापस डबल डिजिट ग्रोथ जो बात करी गई थी शुरुआत में इस साल के, आप डिलीवर करेंगे। तो हो गई ग्रोथ के पैरामीटर्स। अब मार्जिन्स। अच्छा, मार्जिन्स परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो साइन ने इस बार भी अच्छा दिया। 110 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, 12 क्वार्टर्स के हाईज पे आपका मार्जिन खड़ा हुआ है। कहां से मदद मिली? और अब जब 12 क्वार्टर्स के हाईज पे खड़ा है, तो क्या अभी भी Q4 में उम्मीद है मार्जिन्स में फर्दर एक्सपेंशन की? क्योंकि आपकी कमेंट्री कहती है यहां से कि मार्जिन्स फ्लैट या एक माइनर इंप्रूवमेंट Q4 में भी एंटिसिपेट कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल हमारा Q4 में और इंप्रूवमेंट होगा। करीब 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स का Q4 में इंप्रूवमेंट होगा। हम लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन पे फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ लो मार्जिन के या नेगेटिव मार्जिन के जॉब्स भी बंद किए हैं। हम लोगों ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का एक अच्छा काम शुरू किया है। और हम लोग इन्वेस्टमेंट में भी, यदि आप हमारी मार्जिन को देखें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में हम लोग करीब 1% लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एनबीए में। उसके बावजूद हमारा एक्सपांशन Q4 और फुल ईयर में होना एक्सपेक्टेड है। कुछ चेंज एक्सचेंज रेट की वजह से आता है, वो ठीक है। एक्सचेंज रेट मैं वो तो खैर करेंसी तो आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैं मानता हूं आप ज्यादा हेज कर सकते हैं। तो ये जो मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, ये आप कह रहे हैं धंधे में जो रीजेक लो मार्जिन धंधे से हटने की कोशिश, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से, ये क्या प्राइसिंग वाइसिंग पे कुछ पावर लॉटी नहीं है कंपनीज के पास, साइंड के पास? प्राइसिंग इंप्रूव हो रही है क्या सर? जी हाँ, मैं कहूंगा कि कुछ केसेस में हमको प्राइसिंग का भी बेनिफिट मिला है इस क्वार्टर में, और वो आने वाले क्वार्टर में भी सस्टेन होगा। ठीक बात। अच्छा, अब हम रिटेल के लिए सबसे बड़ा सवाल सर, आपने उम्मीद जगाई और फिर उम्मीद पे पानी फेर दिया। आपने कहा था कुछ दिन पहले आप बायबैक करेंगे, अनाउंसमेंट आने वाला है, हम तो उस उम्मीद में बैठे थे। अब आप कह रहे हैं डिफर कर दिया, ऐसा क्यों सर? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल पानी नहीं फेरा है। आप अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। आपको बहुत ही जल्दी वापस हम लोग का डिक्लेरेशन उस पर आएगा विद इन दिस क्वार्टर। तो मतलब मैं मानूं कंपनी के पास ये सिर्फ टाला गया है, आइडिया ड्रॉप नहीं करा है।
नहीं, बिल्कुल आइडिया ड्रॉप नहीं किया है। यदि आप देखें, कंपनी के पास ऐतिहासिक हाईएस्ट एवर कैश है, 1230 करोड़ का कैश हमारे पास है। आज हमारे पास बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेशन है, 50 से 55 मिलियन डॉलर का, जिसको आप कह सकते हैं कि करीब 400 करोड़ रुपया हर साल हम लोग फ्री कैश जनरेट कर रहे हैं। डिविडेंड भी हम लोग अच्छा दे रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इस कंपनी में हमेशा इन्वेस्टर्स का ऊपर ध्यान दिया है। तो हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं इस बात में, खाली उसकी कुछ मोडालिटीज और उसके कुछ डिटेल्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा, इसी क्वार्टर में हो सकता है कुछ अगले हफ्तों में ही आपको इसका नतीजा देखने को सामने मिल तो जाए। अभी कुछ मोडालिटीज, होमवर्क पूरा नहीं था, इसीलिए इस समय फैसला टाल दिया गया। इस बोर्ड मीट पे आउटकम नहीं आया है, लेकिन ये मान के चलूं कि मार्च 2019 इस फाइनेंशियल ईयर में आप अनाउंस करोगे बायबैक, सर, है ना? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पहली बार बाईबैक कर रहे हैं, तो हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस हो वो इक्विटेबल हो सब इन्वेस्टर्स के लिए, और जो हमारा सिग्नलिंग है वो बिल्कुल क्लियर रहे कि हमारा कोई भी हमारे स्टॉक पे बहुत मजबूती है। यदि आप देखें, हमारे स्टॉक का एनालिस्ट एस्टिमेट वो कम से कम नहीं तो 15 से 20% हायर है आज के करंट प्राइस से। तो यदि हम लोग को बाईबैक करना है, उसका कारण केवल यही है कि हमारे पास कैश पोजीशन मजबूत है और हमारे इन्वेस्टर्स से ये एक रिक्वेस्ट रही है। अब उसका बेस्ट तरीका क्या है ताकि सभी इन्वेस्टर्स को उसमें एक अच्छी खबर लगे, उसी मॉडलिटी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक है, हम वेट करूंगा। आप कह रहे हैं हो सकता है हफ्ते भर या अगले कुछ हफ्तों में अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आए। सिर्फ टला है तो लाइकली लग रहा है सर की कमेंट्री से कि मैं उम्मीद कर सकता हूं मार्च 2019 इस फाइनेंशियल ईयर में ही ये अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल, साइंट को लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश थी कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये वो वर्टिकल्स हैं जो ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे साइंट लिमिटेड के लिए।